افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے اور افغانیوں کا ملوث ہونا تشویشناک ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے حملوں کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فوج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں حملے پسپا کیے۔ فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے عرض وطن کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں افغانستان سے دراندازی روکنے کی سفارتی اور سیاسی کوششیں کی۔ اعلیٰ عہدیدار کئی مرتبہ افغانستان کے دورے پر گئے۔ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا۔ ہم سے سوال ہوتا ہے حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی؟ پاکستان میں غیر قانونی موجود افغان باشندوں کی جلد از جلد وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی سے متعلق اجلاس۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء اعلیٰ کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اجلاس میں شامل نہ ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور مبارکباد دی۔ وفاق کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومت سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اجلاس میں افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ۔ ویزا ہولڈر افغان ہی پاکستان میں رہے گا۔ افغانستان کی جانب ایگزٹ پوائنٹس کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے۔ حکام کی بریفنگ۔ شہباز شریف کی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے دوران باعزت طریقے سے پیش آنے کی ہدایت۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے مابین فائر بندی میں توسیع پر اتفاق۔ جنگ بندی میں توسیع دوحہ مذاکرات کے اختتام تک کر دی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ افغان طالبان رجیم نے پاکستان سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی تھی۔ افغانستان اور پاکستان میں 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی شام 6 بجے ختم ہو گئی تھی۔ افغانستان سے جارحیت پر پاکستان کے بھرپور جوابی وار پر افغان طالبان رجیم نے سیز فائر کی درخواست کی تھی۔ دوحہ میں پاک افغان مذاکرات کا بھی امکان۔ سیز فائر تک افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے 250 سے زائد دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے تھے۔ پاک افغان بارڈر پر حالیہ کشیدگی اور تناؤ کی صورتحال برقرار۔ خیبر میں پاک افغان بارڈر تورخم آج چھٹے روز بھی بند۔ دو طرفہ تجارت، کاروباری سرگرمیاں اور آمد و رفت بدستور معطل۔ تورخم بارڈر بندی سے پاک افغان شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پاکستان کو افغان طالبان فتح الخارج فتح الہندوستان کی اشتعال انگیزی پر تشویش۔ افغانستان کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد عناصر ختم کرنا ہوں گے۔ افغانستان سے دہشت گرد عناصر پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں اور بنیادی ڈھانچے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ ہمارے ٹارگیٹس اور دفاعی جوابی کارروائی افغان عوام کے خلاف نہیں تھی۔ طالبان حکومت نے 48 گھنٹے کے لیے عارضی جنگ بندی کی درخواست کی تھی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمارا مشترکہ مقصد ہے۔ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا خواہش مند ہے۔ افغانستان کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات برقرار ہیں۔ اب احتجاجی مراسلے اور امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی۔ دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بن چکا۔ بھارت، افغانستان اور TTP نے مل کر دہشت گردی کی جنگ پاکستان پر مسلط کی۔ کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ پاکستان سے تمام افغانیوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت آ چکا۔ خوددار قومیں بیگانی سرزمین اور وسائل پر نہیں پلتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام۔ کہا طالبان کے 2021 سے اقتدار میں آنے کے بعد سے دراندازی روکنے کے لیے حکومت کی کوششیں۔ وزیر خارجہ نے 4، وزیر دفاع نے 2 کابل کے دورے کیے۔ نمائندہ خصوصی اور سیکرٹری نے کابل کے 5 دورے کیے۔ افغانستان سے دراندازی روکنے کے لیے جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے 8 اجلاس ہوئے۔ 225 بارڈر فلیگ میٹنگز، 836 احتجاجی مراسلے اور 13 ڈی مارچ کیے گئے۔ 2021 سے اب تک پاکستان میں دہشت گردی کے 10,347 واقعات ہوئے۔ دہشت گردی واقعات میں 3,844 پاکستانی شہید ہوئے۔ شہداء میں سول، فوجی جوان، سیکیورٹی اداروں کے اہلکار شامل ہیں۔ 5 سال میں ہماری کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آیا۔
मुल्क दुश्मन अनासर का पाक धरती से सफाया। लखीमपुर व सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 8 खारजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद। इलाके में फितुल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाई गई। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का बड़ा एक्शन। दत्ताखेल में 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल मारे गए। दहशतगर्दों में फितुल खारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। मीर अली में ख्वारिज का हमला नाकाम, 6 दहशतगर्द हलाक। ख्वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की। 1 खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 5 खारजियों ने कैंप्स के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बर वक्त कार्रवाई से ख्वारजी कैंप के बाहर ही अंजाम को पहुंचे। गुज़श्ता 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। हमला नाकाम बनाने पर शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी, शहबाज शरीफ का आज़म। पंजाब काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की सिफारिश की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने मरासला वफाकी वज़ारत दाखिला को इरसाल कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने के लिए चार्जशीट जारी कर दी। टीएलपी की सरगर्मियां पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार। टीएलपी पर फिरका वाराना नफरत फैलाने के इल्जामात आए। तंजीम 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस रही। पुलिस, शहरियों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद शामिल। तंजीम ने मुसलसल रियासती रिट को चैलेंज किया। मजहबी जज्बात भड़का कर बदअमनी पैदा की जाती रही। टीएलपी की क़यादत को इंसानी जानो माल के ज़ियान के जिम्मेदार ठहराया गया। पंजाब काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। 2017 हो, 19 हो, 21 हो, 22 हो, मतलब ये बार बार एक रिपीटेड जो अटेम्प्ट होती है कि ज़िंदगियां लोगों की पैरालाइज कर दें, मुल्क बंद कर दें, उसी की कॉन्टिन्यूटी हमने इस दफ़ा भी देखी। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक जो फ़र्क है वो ये है कि रियासत और जो हुकूमत है उसने मिल के ये फ़ैसला किया कि अब ये मज़ीद नहीं चल सकता। ये मजहबी नहीं, इंतहा पसंद जमात है। टीएलपी के तमाम बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, क्या आपने पुलिस पर हमला करके गजा का मसला हल कर लिया? मुज़ाकरात ना करने की बात बिल्कुल गलत है। सूबे में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। लाशें किसी तौर पर छुपाई नहीं जा सकती। इमारतों की छतों से पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। शहीद पुलिस इंस्पेक्टर का क्या कसूर था? 20 और 26 गोलियां मारी गईं। पुरतशद्दुद वाक़यात में 1648 पुलिस एहलकार जख्मी और 50 से ज़ायद माजूर हो चुके। पुलिस की 97 गाड़ियां मुकम्मल नकारा और 2 गाड़ियां मुकम्मल जला दी गई। क्या ये पुरअमन एहतजाज था? (2021) से लेकर अब तक टीएलपी एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद वाक़यात में पुलिस एहलकार निशाना बने। शहदा में सब इंस्पेक्टर शहजाद नवाज, मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद अयूब शामिल। खालिद जावेद, शफकात अली, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अफजल ने फ़र्ज की राह में जान दी। गुलाम रसूल, अदनान, रज़ाक, मोहम्मद अकबर ने भी अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान की। पंजाब पुलिस के शहदा ने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए जाने निछावर की। तमाम शहदा को सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया। पुलिस ज़राए आईजी पंजाब ने कहा, शहदा के खून का हर कतरा अमन की ज़मानत है। टीएलपी एहतजाज के दौरान शहदा की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। लाहौर में टीएलपी के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। 11 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ थाना बागबानपुरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। 5000 से ज्यादा तहरीक लब्बैक के कारकुन गिरफ्तार हो चुके।
वज़ीर दाखिला से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में शरपसंद अनासर और इंतहा पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं। कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो हम बार बार कहते हैं कि क्रॉस दी बॉर्डर इंडिया और इसराइल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त जो है उनके जो है डेलीगेशन इंडिया में मौजूद होता है और अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमले होते हैं, तो एक साफ मैसेज है कि ये जो है नेक्सस जो है जॉइंट वेंचर आपस में इंडिया का, इसराइल का और अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका आपस में है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ा रिप्लाई भी किया और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज ने जो है वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन भी किया। DI खान हमले में मुलविस दहशतगर्दों में एक मुकामी, दीगर अफगानी थे। खारिज बराह रास्त अफगानिस्तान से राबते में थे। भारत और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू कहा अफगान तालिबान भारत के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। बाज़ अनासिर पाकिस्तान के कानून और रियासत को नहीं मानते, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से, जिसमें बड़े बरवक्त फ़ैसले किए गए और पिछले फ़ैसलों के ऊपर एक फ़ॉलो अप लिया गया। तमाम इदारे मौजूद थे, तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थीं, मगर वज़राए आला में से सिर्फ सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वज़ीर आला अपनी ब्रीफिंग लेंगे तो उस मीटिंग से गैर हाज़िरी की वजह से उनको बैकग्राउंड नहीं होगा और उनको टाइम लगेगा उसको समझते हुए। तो ये सियासत खेलना अमन अमान के इजलास के हवाले से अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला KPK ने शिरकत नहीं की। अमन अमान के हवाले से सियासत करना अफसोसनाक है। अमन अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला की मौजूदगी ज़रूरी थी। अफगान पनाह गुज़ीनियों की वापसी से मुतालिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू कहा आज हड़ताल की कॉल थी जिसे पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में कारोबार बहाल और ट्रैफिक रवान दवा है। एहतजाज की कॉल TLP और तहरीक इंसाफ की जानिब से थी। बगैर मकसद के एहतजाज की कॉलों का यही नतीजा निकलता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम को हिदायत की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर दाखिला और होम डिपार्टमेंट पंजाब को मुलाकात के लिए लिख चुका हूँ। कोशिशों के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। मैं सूबे का मुंतखब वज़ीर आला और 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। मेरा आईनी फरीजा है कि जमात के पेट्रो इन चीफ से हिदायत लूँ। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। सुहेल अफरीदी पर कई साबिक वुज़रा को शामिल करने के लिए दबाव। KP हाउस इस्लामाबाद में सुहेल अफरीदी से पार्टी के अहम रहनुमाओं की मुलाकातें। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की वज़ीर आला KPK से काबीना तश्कील से मुतालिक 3 मीटिंग्स हो चुकी। पार्टी के अहम हलकों की सुहेल अफरीदी को काबीना तश्कील के लिए सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत की तजवीज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर